So Uh, do you want me to share on WhatsApp right now? uh, just wait, huh? Just wait. Okay. I'll go one by one. I'm bringing on the screen first Nikita's solution, and please learn from these. Okay, now the first programs where we have to calculate the area of a square, side equal to 25, area equal to side into side, that is area is square of the side, then print the area. Okay, that's correct. The first program is correct. The second one where the length is 10.5 and breadth is 20.25, we calculate area equal to length into breadth and then print the area. Now one small, I'm not calling it an error, Niket, and please others also see that you have made the variable L as capital and B as capital. Okay, I'm not saying it is wrong, it's correct. It's correct. But in just as you have followed in other programs, you have followed giving variable name small. It is healthy for us to follow the same habit. Like so, I suggest defining variable L and B as small. But I'm also adding that it is not wrong of you to define them in capital letters. Variable names can contain capital letters as well as small letters. Coming to the program where we have to input the side and calculate the area, input length and breadth and calculate the area of rectangle. Okay. Now the program 2B. Here my suggestion is strongly last two programs. You're converting the input to integer. The value that you input for side, you're converting it to integer. And the next one also, you're converting the values of length and breadth to integer. I recommend in the last two programs using converting the input to float type, because when you would convert your input to float type, if you convert your input to float type, you would be able to input, once again, the restriction with converting input to integer is you can only input integer and the program will accept integer values and give you the answer. The moment you input floating value, it will give you error. And if you convert your input to float, it will take integer value as well as float value. So it will not give you an error for input of integer value also and float value also. And so it is healthier and better that you convert your input to float type.
Have you got it, Niket, and others also have got it? Please send me a message in the comment box. In fact, if you remember, in my area of triangle solution, I've converted I've converted base and height to float type. I'll show you that solution. So Niket, is it clear? Please reply with your message. And Samir, you also got it? Yes, sir. Please see my program, the one I had done, program 1F. This was area of triangle program where I first introduced float type. First introduced input. Please see the input have converted to float type. So the advantage is if you input integer values also it would work. If you input decimal values also it would work. Before this 1E which I did, over there I had converted input to integer type, and the limitation was, please see I'm running that program, my program 1E. I input base 5, height 10, I'm getting the area. Okay, this is the solution where I've converted my input to integer type. I run my program again. I input float value. I get error. The moment I enter base as 5.5 float value, I get error. Okay. Which solution is this? The one where we have converted input to integer type. Closing this. And now I've also opened the solution where I will converted the input to float type, the same program. Run it. I enter the value for base as 5.5 and height as 10.5. I'm getting answer with float values. And even if I run the program and enter integer values, I'm getting the answer. तो ये एडवांटेज है, ये मैंने सजेस्ट किया आपको. अब मैं आपका होमवर्क चेक करता हूं समीर. ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड इक्वल टू 25, एरिया इक्वल टू एस इंटू एस, और फिर प्रिंट किया हमने. ओके, बरोबर है आपका आउटपुट. नेक्स्ट वन, लेंथ 10.5, ब्रेथ 20.25, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और फिर आपने एरिया प्रिंट किया, वो भी बरोबर है. ओके, तीसरा वाला इनपुट किया, एंटर द वैल्यू फॉर साइड, और उसको एस में रखा. आपकी गलती यहाँ पर यह है कि आपने इनपुट को कन्वर्ट नहीं किया इंटीजर या फ्लोट में. आगे हमें इस तरह से आईएनटी या फ्लोट लिखना चाहिए और ब्रैकेट दे इनपुट फंक्शन आएगा. तो आईएनटी और बेहतर है फ्लोट, जो अभी भी मैं निकेट के सोल्यूशन में ये फ्लोट. तो ये आपकी कमी है, ये आपने नहीं डाला है. इससे क्या होगा, आपको एरर आएगा. आपका इनपुट स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक्सेप्ट किया जाएगा और आप स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करके एरिया को देंगे. ओके, अगर मैं आपको बताऊं ये प्रोग्राम, आपका सोल्यूशन बताऊं ना, एक तरह से वो मैं करने वाला हूं, देख लेना क्या होगा. मैं दिखाना चाहूंगा आपको सोल्यूशन लेकर, आपका सोल्यूशन जो है एज इट इज. सर स्क्वायर कोर्स कंप्लीट करना रहेगा सर, उसमें एरिया ऑफ स्क्वायर इसके बाद में. एक सेकंड, एरिया इक्वल टू एस इंटू एस, इधर एरर आएगा बिकॉज योर स्ट्रिंग वैल्यू फॉर एस इज स्ट्रिंग टाइप. Okay, you multiplying one string with another string, and so you'll get an error over there. The other thing is, yes, okay sir, output आपने यहाँ कोर्स को क्लोज नहीं किया है. Okay, last program, input enter the value of length of rectangle breadth. इधर भी आपने इनपुट को इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं किया, फ्लोट इज रिकमेंडेड, और एरिया कैलकुलेट करके प्रिंट किया है. तो
इनपुट नहीं किया और वो कोड्स का आपने देखा आपकी क्या गलती है। अभी जी मैं जी सर। मुझे आपके सॉल्यूशंस पे आता हूँ। अब पूजा आपने मुझे 2 बार ये भेजे हैं सॉल्यूशंस, क्या ये दोनों अलग-अलग हैं या सेम ही है? विच वन सर? पूजा से मैं पूछ रहा हूँ। सर ओके सेम ओके। सर सेम है, मैंने पहला गलती से एवरीवन में भेजा था चैट पे, फिर बाद में मैंने प्राइवेटली किया। अच्छा एक सेकंड ना, आपको वो एवरीवन ऑप्शन आ रहा है क्या? हाँ हाँ, मैं चेंज करूँ ऑप्शन जरा। ओके, मैंने चेंज कर दिया। तो मैंने मेरी तरफ से चेंज कर दिया। अभी आप खाली मुझे ही भेज पाएंगे मैसेज। तो मैंने आपको ही भेजा, आपको वापस भेजा, चेंज करके भेज दिया है सेम फाइल। मैं ओपन कर रहा हूँ एक एक करके। नर्सी, ये बेहद सिंपल प्रोग्राम्स थे और ये होमवर्क करना जरूरी है। प्लीज डोंट माइंड इट विद रिस्पेक्ट टू योर एज एंड विद रिस्पेक्ट टू योर प्रोफेशन, क्योंकि जब तक आप ये असाइनमेंट्स, कुछ प्रोग्राम्स आप अपनी तरफ से नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो ये सीखने के प्रोसेस में बहुत जरूरी होता है कि आप खुद अपनी तरफ से कुछ ट्राई करें, नहीं तो मैं कितना भी सिखा लूं आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ओपन कर रहा हूं मैं प्रोग्राम्स आपके। वैसे लेट मी टेल यू फ्रेंड, डोंट गेट मी रॉन्ग, इतना हमारे पास समय नहीं है डेमो सेशन में कि ये मैं करूं, पर मैं जानता हूं ये आपको तसल्ली देगा कि आपके प्रोग्राम्स बरोबर है कि नहीं है, तो इसीलिए वी आर स्पेयरिंग टाइम फॉर दिस। पूजा का पहला प्रोग्राम सम साइड इक्वल टू 25, साइड का स्क्वायर करके एरिया में रखा और फिर उसे प्रिंट किया। ओके, ये बरोबर है प्रोग्राम। नेक्स्ट वन, लेंथ ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया में रखा और उसे प्रिंट किया, ये भी बरोबर है। थर्ड वन, ओके देयर यू आर, ये चाहिए। इनपुट करके वैल्यू जो है साइड की उसे फ्लोट में इनपुट करके साइड में वेरिएबल में रखना है, फिर साइड का स्क्वायर करके एरिया में रखना है और फिर उसे एरिया को प्रिंट करना है। तो दिस इज परफेक्ट। ओके, आपने ऊपर प्रोग्राम में कमेंट्स भी डाले हुए हैं और बीच में लाइनों में भी आपने कुछ, ये लाइन जैसे एरिया कैलकुलेट करने की इधर भी कमेंट डाला है। वैसे कमेंट्स कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी you used everything that we have taught to you all till now, सब चीजें आपने इस्तेमाल की है। और ये अगेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इनपुट करके लेंथ को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ब्रेथ को भी, और एरिया कैलकुलेट कर रहे हो आप और प्रिंट कर रहे हो। जी बरोबर है, आपके चारों सॉल्यूशंस बरोबर है ना। मुझे अंदाजा आ रहा है कि आपने इसे इन्हें पाइथन में ही किया है और चलाकर भी देखा होगा आपके इनको। यस पूजा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर चला के देखा मैंने, सब चल रहा था। पूजा के प्रोग्राम से मुझे मालूम पड़ रहा है कि पूजा ने पाइथन में किए, पर समीर आपके और निकित आपके, मुझे लग रहा है कि आपने इन्हें पाइथन में नहीं किए हैं। तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि आपके पास लैपटॉप है कि नहीं और आपके पास पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है कि नहीं है, मुझे सर मेरे पास लैपटॉप है, पर मैं अभी अहमदाबाद शिफ्ट हुआ हूँ ना। हाँ हाँ, तो मैं वाईफाई कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, तो मेरे को मेरे डैड के ऑफिस जाना पड़ता है। तो कल और आज मैं गया नहीं मेरे डैड के ऑफिस, मैं घर पे ही था, डेटा पे
जूम कॉल पे आया हूँ डेटा से, तो इसलिए मैं लैपटॉप पे नहीं कर पाया। एक मिनट, मैं समझा नहीं, लेकिन आप लैपटॉप है ना आपके पास अहमदाबाद में, और आप पाइथन भी इंस्टॉल्ड है ना? हाँ सर है इंस्टॉल्ड, वो है, पर सर प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास प्रॉपर वाईफाई कनेक्शन नहीं है और डेटा इधर आता है, कभी कभी जाता है कभी कभी, इसलिए मैं मेरा डेटा लैपटॉप पे कनेक्ट नहीं करता यूजुअली। तो आपने ये प्रोग्राम्स अपने किस पे किए, लैपटॉप पे किए और फिर नहीं, मोबाइल पे किए, मेरे सैमसंग नोट्स पे किए और फिर आपको भेजे। आपने मोबाइल पे फिर से उन्हें टाइप किया? हाँ आपने फिर से टाइप किया मोबाइल पे ना? ये हाँ बेसिकली मैं यहाँ पर आपको सोल्यूशन देने के लिए बैठा हूँ आपके प्रॉब्लम का। लेट मी टेल यू, लेकिन आपने जब इसे लैपटॉप पे किया ना हाँ प्रोग्राम्स, तो फिर आप मुझे खाली उसका इमेज व्हाट्सएप पे, आप मेरे को मोबाइल के थ्रू खाली फोटो निकाल के भेज सकते हो, उसका पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है फिर से आपको उसे उन्हें। आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा ना, पीडीएफ फाइल भेजा ना आपने हाँ मोबाइल पे बनाकर, तो इनसे आप हाँ क्या कर सकते थे, यू कैन जस्ट ओपन योर प्रोग्राम, ओके, ओपन यस ओपन द फाइल, जैसे ऐसा ओपन किया आपने, समझो फाइल ओपन, हाँ अपना प्रोग्राम आपने ओपन किया और फिर उसका फोटो निकालिए अपने मोबाइल से और व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हो मुझे। आर यू गेटिंग? यस सर। you don't need to type. What I'm trying to tell you is, मुझे वो अंदाजा था, you don't need to type it all over again in your mobile and send me. Keep the यस picture सर। faster than typing it all over again. And when you take your picture and send it to me on WhatsApp, I will, means you'll save your time also, and it will be the same program. ऐसा नहीं कि आपने लैपटॉप पे कुछ किया और मोबाइल पे कुछ और किया। यस सर। ओके समीर, आप कैसे कर रहे हो? आपने नहीं किया है पाइथन में, नहीं किया लग रहा है, आपने किस पे किया उनको? नहीं, मैंने एक्चुअली मेरे पाइथन इंस्टॉल किया था, लेकिन मुझे कल फॉरवर्ड करना पड़ेगा और इसलिए वो मैंने नोटपैड में ही किया सर। मैं आज वापस से इंस्टॉल कर लूंगा पाइथन। अच्छा, अभी ना सुनिए, मैं अभी आपको एक वेबसाइट दिखाने जा रहा हूँ। ओके, ये होमवर्क का डिस्कशन हो गया, but whether you have a laptop or don't have a laptop, whether you have this software installed or not, इसलिए मैं आपको एक वेबसाइट दिखाने जा रहा हूं। आप मोबाइल के थ्रू पे इस वेबसाइट को यूज कर सकते हो और अपने पाइथन के प्रोग्राम्स बना सकते हैं आप। आई एम शोइंग यू दिस वेबसाइट। मैं अपना गूगल क्रोम स्टार्ट कर रहा हूं, www.gdbonline.com। ओके, वेबसाइट का नाम नोट कर लीजिए, gdbonline.com। एक सेकंड ना, मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ है। सॉरी, onlinegdb.com, मेरे से नाम में मिस्टेक, मैं जीडीबी ऑनलाइन नहीं, इट्स onlinegdb.com। प्लीज करेक्ट द नेम, onlinegdb.com। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपके मोबाइल के थ्रू भी इसे चला सकते हो आप ना। इस वेबसाइट पे आएंगे, राइट साइड पे देखिए लैंग्वेज लिखा हुआ है, वहां आप लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, पाइथन 3। इस समय हमारे सामने सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम है, हमें प्रोग्राम बनाना पाइथन में, तो पाइथन सेलेक्ट कीजिए। अब आपको जो टैब आया है या विंडो आया है, नोटिस कीजिए उसके टॉप पे लिखा हुआ है main.py, और इसमें कुछ कमेंट्स लिखे हुए हैं, कमेंट्स है, और नीचे प्रिंट कमांड है, प्रिंट, जिसमें हम प्रिंट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड ना। अब
अगर आप इस प्रोग्राम को एज इट इज रन करना चाहते हैं, हेलो वर्ल्ड को, आप रन पे क्लिक कीजिए और नीचे देखिए, नीचे वाले विंडो में आपको आउटपुट नजर आ रहा है हेलो वर्ल्ड इस प्रोग्राम का। एंटर प्रेस कीजिए नीचे, तो आप अपने प्रोग्राम विंडो में आ जाते हैं वापस से। अब ये नोटिस कीजिए मैं क्या कर रहा हूं, ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड वाली लाइन को निकालता हूं और मैं ये लाइन लिख रहा हूं, साइड इक्वल टू 25, एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर एस स्क्वायर, प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, पुट अ कॉमा एंड राइट ए, मेन डॉट पाई में ही जो प्रिंट कमांड था वो निकालकर मैंने ये टाइप किया और अब मैं रन पे क्लिक कर रहा हूं, रन पे क्लिक कर रहा हूं और अब मुझे इस प्रोग्राम का जिसका स्क्वायर है, साइड है 25, उसका स्क्वायर किया हमने और एरिया फाइंड आउट किया 625। देखिए आउटपुट आ रहा है। अच्छा, अब जरा सुनिए इस वेबसाइट का लिमिटेशन। मींस मैं कह रहा हूं ये कि आप अपना प्रोग्राम टाइप कीजिए और रन कीजिए, आपको आउटपुट नजर आएगा। ये आप अपने मोबाइल से भी चला सकते हैं और मुझे जब भी आपको सबमिट करना होगा ना, तो खाली इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और व्हाट्सएप पे मुझे आप सबमिट कर सकते हो। अब इसका लिमिटेशन बताता हूं वेबसाइट का। ओके, आप इसमें प्रोग्राम सेव न करें, आप इधर एक ऑप्शन है न्यू फाइल, वो भी ना करें क्योंकि वो पेड वर्जन में वो सब कर सकते हैं, आप फ्री वर्जन में नहीं कर सकते। तो फ्री वर्जन में आप क्या कर सकते हैं बता रहा हूं। ओके, अभी समझो आपको अगला नेक्स्ट प्रोग्राम करना है, आई रिपीट, आपको नेक्स्ट प्रोग्राम करना है, तो आपको ये लाइनें डिलीट करनी होंगी इसी प्रोग्राम से और आपको अपना नया प्रोग्राम टाइप करना होगा और फिर उसे रन करोगे। आई रिपीट, आपको यही करना होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम समझो, लेंथ इक्वल टू 25, ब्रेथ इक्वल टू 10, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ना इधर नोटिस कीजिए छोटी सी बात, जब भी मैंने बी टाइप किया ना, तो एक लिस्ट आ गया जिसमें वो पाइथन के मुझे कीवर्ड्स दे रहा है ना। मुझे इनमें से कोई यूज नहीं करना है तो मैं स्पेस दे देता हूं, तो बस एल इंटू बी हो गया। प्रिंट एरिया, एरिया प्रिंट कर रहे हैं और फिर आप इसे रन कीजिए और आपको इसका आंसर आ गया। खाली मैं डाउनलोड चेक करता हूं, ये देखिए लास्ट आइकॉन डाउनलोड है, इस पे क्लिक कीजिए। It is giving me a message, leave the site. Okay, I just click on leave और ये प्रोग्राम मेरे हार्ड डिस्क पे सेव हो गया main.py के नाम से। अब ये एक बात है कि don't go for new file, it will not work. Don't go for save. Okay, those things will not work. ये जो आपको फ्री वेबसाइट है, ये आपको सिर्फ एक ही प्रोग्राम बनाने देता है main.py। हाँ, आपको अलग अलग प्रोग्राम बनाने तो उसको आपको यहीं पर ही चेंज करते जाना है, बस इसी में चेंज करके डाउनलोड कीजिए। अब समझो हमने इसको चेंज किया और डाउनलोड करेंगे। पहले मैंने main.py डाउनलोड किया था, अभी इसे डाउनलोड करूंगा, तो ये जो दूसरा प्रोग्राम सेव हो गया main1.py से, तो ऐसे वो सेव होते जाएंगे, main1, main2, main3, main4 ऐसे सेव होते जाएंगे आपके हार्ड डिस्क पे। और अगर हार्ड डिस्क पे सेव नहीं करना है तो छोड़िए, बस आप उसी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको main.py में ही चेंजेस करने हैं और उसी को चलाकर देखना है। इज दिस क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड दिस? प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम डूइंग सेव न्यू फाइल। ओके, ये हम देख चुके हैं। वो as I said, it will work in the paid version. It is not working in this version.
the free version. What we are using is the free version. Okay, chaliye. I finished my introduction on this. I'm closing this and we go further with our concepts. Now my notes are open. Yesterday I had shared my notes with you. This particular pages, page 6 to 11. Earlier last week I had shared with you page number 1 to 5. Operator is a symbol that performs certain operations. Python provides the following set of operators. Okay, you have arithmetic operators, relational operators, also called as comparison operators, logical operators, assignment operator, special operators. We'll learn them one by one. Don't be curious about them all together. We'll be learning them one by one. So we are starting with arithmetic operators. Let me tell you, friends, in the program when you use symbols like plus, which is for addition, minus, hyphen is for subtraction, star symbol for multiplication, the forward slash symbol is used for division. There are some additional operators, the modulus operator, the floor division, and the exponent operator. I'll introduce them to you one by one. I'll teach them to you. We have a program below this. I shall do this program with you. Yeah, before I start with the operators, there is one more thing I remember now which I want to discuss with you. Now friends, today in your homework program, for input I recommended you all to use the float function. Okay, I'll just clarify when for your input would you use integer and when would you use float. Now see, in this program, this is a program number 2 that we have done last session. We are entering if we want to input an employee number or roll number of a student or product number. Now often these numbers do not have any decimal point in them. These numbers are without a decimal point. They are proper integer values. So जब आप इस तरह से कुछ input कर रहे हैं, employee number, roll number, product number, तब आप input को integer में convert करें, क्योंकि तब हमें मालूम है guaranteed कि उसमें decimal point नहीं होगा. एक और example देता हूँ, जैसे enter the age of a person. Now age हम लोग, we tell the age as 17 and a half, 20 and a half. We tell complete years 17 or 20. So जब आप age input कर रहे हैं तो आप integer उसे convert, input को string से integer में convert करें. But आप किसी की salary input कर रहे हैं, या जैसे आज homework वाले program में length और breadth, side of a square, these values, if you give a proper thought to these values, they could be with the decimal point, they could be without the decimal point also. And so recommended that you, while inputting them, you convert to float type. When I repeat, when you have a feeling that your value can be with the decimal point and without the decimal point, so use float type. When you are 100% sure that the value you're going to input will not have decimal point, then you use integer. Have I clarified myself? Have you understood this? We're starting with the new program now. This one. A equal to 10, B equal to 2. Okay. Print, in the print command,
in double quotes, I'm writing A plus B equal to. Now try to understand this. What I put in double quotes, A plus B equal to, is a string, and it will be shown to you as it is by the print command. After this, I put a comma. That means next to the text A plus B equal to, next to this, I'm again writing A plus B, but this time I'm not putting it in double quotes. Let me tell you, this, what is written in double quotes, is true, and it will be shown to you as it is. After this, the comma will leave a space, and this A plus B is called as expression. I repeat, it's called as expression. I'll put some comments over here. A plus B, the one without quotes, is called expression. It's a mathematical expression. Whereas in double quotes, A plus B equal to, which I've written, is a string, and it will be shown to you as it is. Acha, what will be done in case of A plus B? It will be solved. The value of A is 10, the value of B is 2, 10 plus 2, 12. Okay, it will be shown to you on the screen. Okay, so expression, it will be solved and the value will be displayed. Whereas in double quotes, A plus B equal to is a string, it will be displayed as it is. So let us run this program and see the output. The output we're going to get is A plus B equal to, and next to that, comma will leave a space, and we'll see the value 12 after that. I'm saving this program by the name program 3. Running it. A plus B equal to 12. I'm continuing this program. These are some simple operators, but A minus B equal to, and we want to see the result of A minus B. Now, let me tell you, इस print command में जो मैं जो टॉपिक आपको सिखा रहा हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, वो ये हिस्सा है. ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, A plus B without double quotes, A minus B, okay, is where I've used the plus operator in the minus operator. So A minus B, 10 minus 2, 8 will be appearing to you. A star B, that is a multiplication operator. We are multiplying 10 with 2, that is 20 will get. A divided by B. So 10 will be divided by 2 and you get 5. Now we'll see the output till here. These are some simple operators that we have used. नोटिस कीजिए A डिवाइडेड बाय B का आंसर आपको 5 नहीं 5.0 आ रहा है. मतलब यू नो एक्चुअली मेरी A की वैल्यू इंटीजर है, B की वैल्यू इंटीजर है. A प्लस B में जो आंसर आया इंटीजर था, A माइनस B का जो आंसर आया वो इंटीजर था. A मल्टीप्लाइड B का आंसर आपको इंटीजर दिया, बट पाइथन ने अपनी तरफ से A डिवाइड बाय B करके आपको आंसर इंटीजर में फ्लोटिंग वैल्यू दिया, 5.0 दिया उसने. ये बस आपको गौर करने की बात है, खाली ध्यान में रखने की बात है कि बाकी सब का आंसर उसने इंटीजर दिया, पर डिवीजन का आंसर उसने फ्लोट वैल्यू दिया आपको. अब कुछ नए ऑपरेटर्स मैं सिखा रहा हूं आपको. A परसेंटेज B. A परसेंटेज B को रिमाइंडर ऑपरेटर कहते हैं. रिमाइंडर या मॉड्यूलस ऑपरेटर इसे कहते हैं. ये आपको रिमाइंडर देता है.
मैं सिखाता हूं आपको रिमाइंडर, कैसे फाइंड आउट करते हैं. I'm starting a paint program in Windows. स्कूल में जब हम डिवीजन करते थे तो डिवीजन समझो हमें करना है. आई टेक एन एग्जांपल. 29% or let me make it as 39% 5. Now we want to calculate 39% 5. वेरी फर्स्ट ये जो परसेंटेज ऑपरेटर आप देख रहे हैं, इसे देखकर यू डोंट थिंक दैट दिस इज समथिंग टू डू विद परसेंटेज कैलकुलेशन. आई रिपीट, ये परसेंटेज सिंबल को आपको देखकर अगर ऐसा लग रहा है कि ये परसेंटेज कैलकुलेशन करेगा, इट विल कैलकुलेट सम परसेंटेज ऑफ सम वैल्यू. सो लेट मी क्लैरिफाई, दिस इज नथिंग टू डू विद परसेंटेज कैलकुलेशन. ये ऑपरेटर जो परसेंटेज ऑपरेटर है, ये आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करने में कैलकुलेट करके देता है. वी आर लर्निंग व्हाट इज रिमाइंडर. अब हमें ये फाइंड आउट करना है 39% 5 क्या है. तो डिवीजन करने के लिए यहां अंदर मैं 39 लिख रहा हूं और यहां बाहर मैं 5 लिख रहा हूं. ओके, हमें 39 को 5 से डिवाइड करना है. अब मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, 5 1 जा 5, 5 का टेबल चलाएंगे. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड we'll come closer to 39. We'll not go beyond 39. We'll come closer to 39. Either 39 पे आए या उसके पहले, हाँ, उससे आगे नहीं जाना है. तो it is 5 7 जा होता है 35 and 5 8 जा होता है 40. तो हम 40 की तरफ नहीं जाएंगे. 5 7 जा 35 होता है, तो इधर यहाँ 7 लिखते हैं हम, और यहाँ नीचे हम 39 में से 35 माइनस करेंगे, बिकॉज 5 7 जा इज 35. 39 में से 35 माइनस करेंगे और बच जाता है 4. ना अभी यहां पर हम रुक जाएंगे. आपको याद है, अगर डिवीजन को आगे कंटिन्यू करना है, तो 7 के आगे हम पॉइंट लगाते हैं और 4 के आगे 0 लगाएंगे. जब 7 के आगे पॉइंट लगाएंगे to continue with to give the answer as a fractional value, decimal value. After 7 we put a point, and when you put a point after 7, 4 के आगे 0 लगाते हैं और डिवीजन को कंटिन्यू करते हैं. मतलब कुछ ऐसे करेंगे, आगे पॉइंट लिखेंगे 7 के बाद, 4 के बाद 0 लिखेंगे, और अब 5 8 जा, ओके, 5 8 जा होता है 40. तो 40 में से 40 माइनस करेंगे. ओके, आप में से कोई एनोटेशन यूज कर रहा है, प्लीज मत यूज कीजिए, बाद में कीजिएगा या क्लियर कर दीजिए. आप जो एनोटेशन यूज कर रहे हैं, आप में से कोई रेड लाइन जिन्होंने डाली है, क्योंकि मैं इसे सेव करना चाहता हूं आपके लिए बाद में. तो 40 में से 40 चला गया और बचा कुछ भी नहीं. ना इधर हम कहेंगे डिवीजन पूरा हुआ ये प्रॉब्लम का, और आपने आंसर 7.8 दिया. पर जरा याद कीजिए, मैंने आपको कहा था
कि जहां मैंने कहा था और अभी कह रहा हूं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो जहां आपको 7 के बाद पॉइंट देना पड़ा और ये 4 के आगे 0 लिखना पड़ा, उधर आपको रुक जाना था। आपको ना पॉइंट देना था और ना 4 के आगे 0 लिखना था, आपको वहां रुक जाना था। मैं इसे कॉपी कर रहा हूं। यहां साइड में इसे रख देता हूं मैं, खाली आपके रेफरेंस के लिए। ओके, पर आपको ये करना नहीं है। हाँ, तो क्या आपको मैंने कहा कि जहां आपको ये पॉइंट देना पड़े वहां आपको रुक जाना था 7 के आगे, आपको ये 0 नहीं देना था। ओके, ये सब नहीं करना था। ओके, यहां आपको रुक जाना था। एंड लेट मी टेल यू, इस तरह से ये जो 7 आप देख रहे हैं, इसे आपको मैं शेयर करूं, इसे कहते हैं क्वोशंट। डिवीजन करते समय इसे कहते हैं क्वोशंट। ये आपको क्वोशंट पे भी ध्यान देना है। ओके, अभी थोड़ी देर बाद क्वोशंट की भी बात होगी, और इसे कहते हैं रिमाइंडर। एंड ये जो ऑपरेटर अभी हम कर रहे हैं 39%5, ओके, 39%5, ये हमें देगा 4 आंसर जो है रिमाइंडर। आई रिपीट, 39%5 will give us the answer 4, which is the remainder piece. गलती से मेरे से इरेज हो गया, मैं फिर से टाइप कर देता हूं। वहां 39%5 will give you the answer 4, which is the remainder. And let me tell you, जब आप 39 $/5 करेंगे, $/, हाँ, सिंगल// नहीं, हम जो डिवीजन के लिए सिंगल// यूज करते हैं वो नहीं। अगर आप $// ऑपरेटर यूज करेंगे, $// ऑपरेटर यूज करेंगे, तो वो आपको देगा आंसर 7 जो है क्वोशंट। एंड यहां पर अगर आप 39 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, सिंगल// यूज करेंगे डिवीजन ऑपरेटर, तो वो देगा आपको आंसर 7.8। ये तीनों रिलेटेड ऑपरेटर्स डिवीजन से वास्ता रखते हैं। दे आर रिलेटेड टू डिवीजन, बट दे गिव अस डिफरेंट आंसर्स। परसेंटेज ऑपरेटर गिव्स अस द रिमाइंडर, $// gives us the quotient. You know, सिंगल// और $// को कंपेयर करो। 39 डिवाइडेड बाय 5 हमें देगा 7.8 एंड 39 $// देगा हमारा आंसर 7। ये तीनों ऑपरेटर्स एक साथ कवर किए गए हैं हमने। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। प्लीज रिप्लाई, या अगर आपका कोई डाउट है तो वो पूछिए मुझे चैट बॉक्स में। Please, this is important. Reply. You understood or not? निकेत, your reply. आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है निकेत। $// is called as flow division. Here you are, flow division operator. And you know, it will give you the answer as the quotient. It will calculate quotient and give you the quotient.
Okay, modular operator gives you the remainder. I'm typing over there. So the double forward slash operator, what is a flow division operator, gives us the quotient, and the percentage operator gives us the remainder. Then we have one more operator, the exponent operator. But before I share that with you, I'm giving you some kind of homework on this, okay, for next Saturday. You're going to give me the answer to 25 or 45 divided by 9 equal to 45 double forward slash 9 equal to आप देंगे आंसर, and 45% 9 आंसर देंगे. See, ये तीन अलग अलग ऑपरेटर्स है, आपको मुझे इन तीनों का आंसर देना है, जैसे मैंने ऊपर हमारे मेरे एग्जांपल में किया. नेक्स्ट, 79% 7, 79 चलो डिवाइडेड बाय 7, और आपको ये मैन्युअली करना है, पाइथन में नहीं करना है आपको, मैन्युअली आपको मुझे ये आंसर्स बताने. आई वांट टू नो वेदर यू अंडरस्टूड दीज ऑपरेटर्स. परसेंटेज 7 रिमाइंडर ऑपरेटर. ना मैं अभी एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं और फिर ये बात खत्म होगी. ये दो प्रॉब्लम्स मैंने दिए हैं जिसमें आपको डिवाइड जिसमें आपको डिवीजन ऑपरेटर, फ्लो डिवीजन ऑपरेटर, रिमाइंडर ऑपरेटर, तीनों के आंसर्स मुझे बताने. अब मैं और एक एग्जांपल आपके साथ कर रहा हूं. तो ये जो था हमारा एग्जांपल 1, ये एग्जांपल 2 आपके होमवर्क के लिए, ये एग्जांपल 3 आपके होमवर्क के लिए, और एक और मैं अभी करने जा रहा हूं वो है एग्जांपल 4. %13 19 इक्वल टू. ओके, इस एग्जांपल की कुछ खास बात है. 13% 19. ना मैं बताता हूं क्या खास बात है. आप पहले की जो एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, इन तीनों एग्जांपल्स में यू हैव अ बिगर वैल्यू डिवाइडेड बाय स्मॉलर वैल्यू. You have a bigger value first and you are dividing it or finding the remainder with a smaller value. आगे बड़ी वैल्यू है और पीछे छोटी वैल्यू है तीनों एग्जांपल्स में. 39 इधर आगे और पीछे 5, 45 इधर आगे पीछे 9, 79 आगे और पीछे 7. पर लास्ट एग्जांपल अभी जो मैं एग्जांपल कर रहा हूं उसमें देखिए, यू हैव अ स्मॉलर वैल्यू और आप छोटी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं बड़ी वैल्यू से. इसके पहले तीनों एग्जांपल में बड़ी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं छोटी वैल्यू से, इधर आप छोटी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं बड़ी वैल्यू से. ये इस एग्जांपल की खास बात है.
finding remainder of a smaller value divided by a bigger value. Now ये थोड़ा ट्रिकी है, और देखो आप जवाब दे पाते हो कि आपके जवाब देखो, जैसे मुझे पता चले कि आपको मालूम है कि नहीं इनके बारे में. Give me your answer. 13% 19. हाँ, रिमाइंडर क्या है? Send me your answers. Kindly send me your answers according to you. आंसर नहीं आया अभी तक आपका किसी का? यस, अभी तक जवाब नहीं है किसी का भी बरोबर से. इसलिए मैंने कहा ये ट्रिकी है. नहीं निकेत, आपके दोनों जवाब गलत है. समीर, आपका भी जवाब गलत है. मुझे आपका भी जवाब गलत है. सोचिए, तब तक मैं खाली यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ कुछ. आप सोचिए अपना आंसर. मैं क्या कर रहा हूँ, डोंट वरी. इधर अंदर 13 और यहाँ बाहर 19. ओके, कोई और जवाब, कोशिश. अब देखिए मैं बताता हूँ, अभी बात बताता हूँ. निकेत, आपने जो रिमाइंडर 6 बताया वो आपने ये सोच, ये आपने 19 डिवाइडेड बाय 13 कंसिडर करके बताया. 19, अगर 19 आगे होता और परसेंटेज 13 होता तब हम कहते हैं रिमाइंडर 6. It is not 19 divided by 13, it is 13 divided by 19, and that's what we want to find the remainder of. समझे आप? चलिए मैं बताता हूं आपको क्या. ठीक, जब भी आप डिवीजन कर रहे हैं तो इस केस में you are not going to do like this. 19 ones are, और यहाँ नीचे -19, ये आप नहीं कर सकते हो. Because 13 is a smaller number, so you can't say 19 ones are 19. You can't divide 13 by, 13 by 19 even once, because 13 is a smaller value. I repeat, आप ये नहीं कर सकते. समझ रहे हो क्या नहीं कर सकते? इरेज कर रहा हूं मैं इसे. तो आप क्या करोगे? You will say 19 zeros are, and what is 19 into 0? 19 into 0 is 0. 19 into 0 is 0. तो आपको 13 में से 0 माइनस करना है, और 13 में से 0 माइनस करना है बिकॉज 19 0 is 0, और अब बच गया 13 में से 0 कम किया और बच गया 13, and that is your answer. The remainder is 0 is quotient over here and 13 is the remainder. तो जब आप 13 को 19 से डिवाइड करेंगे, the remainder is 13. And let me tell you, ऐसा सिर्फ ये 13 डिवाइडेड बाय 19 के लिए नहीं है. एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं.
कोई भी छोटा नंबर, कुछ भी हो छोटा नंबर, any small number, when you divide by a big number and you want to find the remainder, any small number when you divide by a big number and you want to find the remainder आपका हो जाएगा वो छोटा नंबर जो है वो पूरा का पूरा हो जाएगा remainder. Whenever you divide a small number by a big number, your entire small value, that number, okay, क्योंकि वो बड़ा वो छोटा नंबर एक भी बार बड़े नंबर से नहीं डिवाइड हो सकता है, तो वो छोटा नंबर पूरी तरह से बन जाता है रिमाइंडर. ये समझा आपने? Is this understood by all? Please reply. Niket? This is division, please. Only thing is you have to be just bit careful while doing this division. Okay, we go further. Niket, I did not get your reply whether you understood or not. We finished on discussion on this. I'm saving this. I'll be sharing it with you. So this includes my homework, 2 tasks, 2 problems I've given you for homework over here in this. One more homework I'll just add. This is one more problem I've given to you. You're going to do it manually, please. I'm saving this. I'll be sharing this file with you, image file. Okay, I just name it as division underscore remainder, division, quotient, and remainder. So these 3 operators have been covered over here. Division means single forward slash, quotient is a double forward slash symbol, and remainder you get from the percentage symbol. Let's return back to Python. Okay, so A divided by B, the single forward slash. Okay, what you would get is the 10 divided by 2, 5 you get. A percentage B, you get the remainder. Tell me 10 divided by 2, how much is the remainder? Your answer. Come on, tell me what is the answer? 10 divided by 2, remainder. Let me see whether you understood. I want the answer. Come in everybody, quickly. Please be quick. How? 10 divided by 2, remainder. 2 5s are 10. 10 में से 10 गया, बचा कुछ नहीं, remainder 0. Correct. And just last, the next operator, A double forward slash B, will divide A by B and give me the quotient A divided by B. 10 divided by 2, how much is the quotient? Yes, 5. And then one more operator remains, A star star B. A star star B means exponent operator, raised to the power, means 10 raised to the power of 2, 10 square. 10 raised to the power of 2, 10 square. How much is 10 square? Tell me.
Yes. So this is a raise to the operator power to calculate powers. लीजिए मैं इसे रन कर रहा हूं और देखिए यहाँ आंसर्स है, इन्हें देख लीजिए जरा प्लीज. द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर 10 and 2. अब खाली जरा a डिवाइडेड बाय b का आंसर और a डबल फॉरवर्ड स्लैश b का आंसर कंपेयर कीजिए. a डिवाइडेड बाय b आपको आंसर 5 तो दे रहा है बट डेसिमल फॉर्म में, और a डबल फॉरवर्ड स्लैश b आपको 5 दे रहा है जो क्वोशिएंट है इंटीजर फॉर्म में, और a परसेंटेज भी आपको रिमाइंडर दे रहा है. जस्ट हैव अ लुक. अब इस एग्जाम्पल में और थोड़ा समझने के लिए हम खाली एक काम करते हैं. a की वैल्यू को 11 बना देते हैं. ओके, इसी प्रोग्राम में जब मैं इस तरह से एक लाइन के आगे ऐसे कमेंट लिखकर मैं कुछ लिखूं वैल्यू, तो समझ जाइए मैं कह रहा हूं आपको टू ट्राई द सेम प्रोग्राम विद दिस चेंज. a इक्वल टू 10 था और फिर आप ट्राई करना a इक्वल टू 11 या कुछ whatever you want. If you want to change the value of b also and see. तो बताइए मुझे a plus b 11 plus 2 हुआ 13, a minus b 11 plus minus 2 हुआ 9, 11 into 2 22. अच्छा, अब इसका जवाब आप देंगे मुझे. इसका जवाब क्या है? इसका जवाब क्या होगा 11 डिवाइडेड बाय 2 का? चैट बॉक्स में जवाब भेजिए. फिर इसका जवाब a परसेंटेज b का और फिर a डबल फॉरवर्ड स्लैश b का. पहले a डिवाइडेड बाय b का जवाब. नहीं, पूरा आपका जवाब सही नहीं है. टेन 11 डिवाइडेड बाय 2 का जवाब है 5.5. नेक्स्ट, a परसेंटेज b का जवाब क्या है? a परसेंटेज b रिमाइंडर. डिवीजन का जवाब 5.5 है. रिमाइंडर, हाउ मच इज रिमाइंडर? कम ऑन, रिमाइंडर बताइए अभी. 1, करेक्ट. अच्छा, a डबल फॉरवर्ड स्लैश b का जवाब क्या है? ये हमें क्वेश्चन देता है, याद दिला रहा हूं. सर मैंने भेजा आपको चैट बॉक्स में. निखिल, आपका जवाब नहीं आया मुझे इसका. किसके जवाब की बात करो? डबल फॉरवर्ड स्लैश क्वेश्चन का जवाब नहीं आया आपका मुझे अभी तक. ऊपर स्क्रॉल हो गया कि देखो. नहीं, क्वेश्चन का जवाब नहीं आया निखिल आपका. वापस से भेजिए निखिल क्वेश्चन का जवाब. समीर, आपका क्वेश्चन का जवाब नहीं आया. क्वेश्चन मींस डिवाइड करके आपको इंटीजर में आंसर देगा, वो आपको डेसिमल में नहीं देगा. डिवीजन ऑपरेटर आपको फ्रैक्शन में आंसर देगा, दैट इज 5.5. ये आपको आंसर देगा 5 डबल फॉरवर्ड स्लैश. एंड लास्ट 11 रेज़ टू द पावर ऑफ 2. 11 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 121. करेक्ट. देखते हैं आंसर हम. इस तरह आप अलग अलग वैल्यूज a और b की चेंज करके देखें आंसर. कुछ आपको एडिशनल ट्राई आउट करना, ट्राई करें बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ a and b. ओके, so well, I've done my best to make you understand this topic, particularly the operator division, percentage, remainder and the flow division. ओके, ये हमारे नोट्स में कवर्ड है. देखिए ये एग्जांपल, सेम एग्जांपल कवर्ड है. और अब और एक वेरिएशन इस एग्जांपल का, ये इसका आउटपुट है इसके नीचे. ओके, ये आउटपुट है.
और अब और एक एग्जाम्पल जिसमें हमने क्या किया है, ए की वैल्यू 10.5 ले रहे हैं और बी की वैल्यू 2 ले रहे हैं। Are you getting me? A की वैल्यू 10.5, B की वैल्यू 2। हम इसी प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं। नो नीड ऑफ राइटिंग अनदर प्रोग्राम। A की वैल्यू 10.5। ओके, तो जल्दी जल्दी बताते जाइए। एक चलो A प्लस बी 10.5 प्लस 2 हुआ 12.5। ओके, ये माइनस होगा 8.5। 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा 21। ओके, अब ये क्या होगा आंसर? A डिवाइडेड बाय बी क्या आंसर देगा? ये A डिवाइडेड बाय बी, जब जहाँ A की वैल्यू 10.5 और डिवाइड करे B से 2 से, जरा सोचिए डिवीजन वाले क्या आंसर देंगे? इसका आंसर पूछ रहा हूँ। Yes, correct. Okay, the answer is correct. Yes, Samir, your answer is correct. Pooja, yes, correct. Next, A percentage B, 10.5 divided by 2 remainder, remainder operator. What is the remainder? This time, it's a bit tricky. Remainder क्या होगा इस बार? Yes, Niket, correct answer. Pooja, correct answer. Samir. Okay, 10. 2 फाइजा होता है 10, 10.5 में से 10 चला गया, बचा क्या रिमाइंडर? 0.5। अच्छा, ए 2 डबल फॉरवर्ड्स का फ्लो डिवीजन, फ्लो डिवीजन जो आपको डेसिमल में आंसर नहीं देगा, क्वेश्चन देगा वो। अभी अभी हमने रिमाइंडर निकाला, तो क्वेश्चन कितना हुआ उसका? 5, करेक्ट। ओके, एंड दिस raised to the power 10.5 raised to the power of 2. I'm not asking the answer, you just save it. Good, Niket, you have given me the answer 110.25. There you are, the answers. So we just completed this example. Now something more about division जो मैं समझा चुका हूँ, यहाँ एग्जाम्पल्स है, आप देखें, ये देखिए। Just hold for a moment. Ten divided by 2, okay, will give you the answer 5.0, the single division operator. Ten double forward slash 2 will give me quotient 5. 10.0 divided by 2. Okay, will give me the answer 5.0. 10.0 double forward slash 2 will give me the answer 5.0. Something more about the single division and the floor division operator. Some more examples.
Let us read the note. The forward slash operator always performs floating point arithmetic, that is the division operator, hence it will always return float value. ये जो forward slash operator division operator है, बताया जा रहा है ये आपको हमेशा floating point आंसर देगा. जैसे 10 डिवाइडेड बाय 2 किया तो उसने 5.0 दिया और 11 डिवाइडेड बाय 2 किया तो उसने 5.5 दिया, मींस वो हमेशा आंसर फ्लोट वैल्यू में देगा. फ्लोट डिवीजन कैन परफॉर्म बोथ फ्लोटिंग पॉइंट एंड इंटीग्रल अरिथमेटिक. If the arguments, if your values are integer type, the result will be integer type, and if at least one value is float type, then the result will be float type. Flow division can perform both integral for floating point arithmetic and integral arithmetic if the arguments are integer type. ये देखिए मैं एग्जांपल्स देता हूं आपको. Please hold for a moment. Sorry, please. I Hello. Sorry for the disruption. Hello. Hello, please. I'm repeating. I was mute. I did not realize that. I'm repeating my examples. Please see 10 divided by 2. 10 is, when you use single forward slash, that is a division operator, ये आपको हमेशा आंसर फ्लोट में देगा. ओके, हमेशा आंसर फ्लोट में देगा, फ्लोटिंग वैल्यू में देगा. Single division operator. 10 divided by 2, 5. Mathematically value 5 होती है, 5.0 the answer means answer floating value हो गया. 11 divided by 2, 5.5 floating value naturally. 10.5 divided by 2, 5.25, that's floating value.
नोटिस कीजिए जब आपने 10 डिवाइडेड बाय 2 दिया था तो वैल्यू होता है 5, बट उसने दिया आपको 5.0 फ्लोटिंग फॉर्म में आंसर दिया. दैट इज अबाउट डिवीजन ऑपरेटर. अब ये फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है? ओके, ये फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर आपको क्वेश्चन देता है, बट ये आपको जो आंसर देगा वो किस फॉर्म में देगा, किस टाइप की वैल्यू देगा, तो वो बता रहे. The values which are participating are integer. Both the values are integer, 10 and 2, so the result will be integer. This time also 11 and 2 integer, so answer integer. But अगर एक वैल्यू फ्लोटिंग होगी और दूसरी इंटीजर, तो वो आंसर आपको फ्लोटिंग वैल्यू में देगी. अब नोटिस कीजिए 10.5 डबल फॉरवर्ड स्लैश 2 क्वेश्चन 5 ही होता है, और वो 5 इंटीजर फॉर्म में नहीं दिखा रहा है, आपको फ्लोटिंग फॉर्म में दिखा रहा है, 5.0 दे रहा है आपको. क्यों? क्योंकि जब एक वैल्यू जो इस फ्लोट डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रही है, अगर वो फ्लोट वैल्यू है, तो इट चूजेस टू गिव यू द आंसर एज अ फ्लोट आंसर. ना फ्रेंड्स, इस बात को ये बात है जो हम यहाँ डिस्कस करने के लिए आए हैं. ये बात इतनी बॉदर करने की जरूरत नहीं है हमें इस बात को. हम जस्ट कवर्ड इट. सी, फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर can perform both floating point and integral arithmetic if the arguments, if the values are integer type, the result is integer type. If at least one argument value is float type, then the result will be float type. Now we are going to do something called a string, string arithmetic. We can also use plus and multiply operators with strings. जी हाँ, हम प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को आपको स्ट्रिंग्स के साथ दिखाने जा रहे हैं. देखिए एग्जांपल्स को. आई एम डूइंग इट इन इंटरैक्टिव मोड ओनली. इंटरैक्टिव मोड में आप प्रिंट लिखे या न लिखे चलता है. पाइथन प्लस आईडीएलई. ना मैंने डबल कोट्स में पाइथन लिखा है और फिर प्लस सिंबल लिखा है और फिर डबल कोट्स में आईडीएलई लिखा है. ये दो स्ट्रिंग्स है और बीच में प्लस सिंबल दिया है. ना यहाँ पर इस प्लस सिंबल को कहते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, जिसका काम है ये दो स्ट्रिंग्स को जोड़कर एक स्ट्रिंग बनाकर आपको देना. नो स्पेस इन बिटवीन. तो आप जो देख रहे हैं रिजल्ट इज अ सिंगल स्ट्रिंग पाइथन आईडीएलई. And between the two there is no space. It is and what you have got is a single string. The two have been combined into one string. Yes, this is called as the concatenation operator. Please see over here, plus sign. It's called the string concatenation operator. Notice कीजिए यहाँ इस एग्जाम्पल में इधर इस एग्जांपल में नोटिस कीजिए पाइथन हमने डबल कोट्स में दिया है और प्लस 10 डबल कोट्स में दिया है. तो पाइथन एक स्ट्रिंग है और 10 दूसरा स्ट्रिंग है, और उन दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके पाइथन 10 हमें रिजल्ट में दिखाई दे रहा है. ओके, दिस वैल्यू 10 इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू, इट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू. लुक एट माय नेक्स्ट एग्जांपल. I am writing in double quotes Python plus, without double quotes I am writing 3, Python 3. Enter. I get an error. Now why do I get an error? Is because Python what I put in double quotes is a string and 3 what I have written is an integer value. So I have written one string value and one integer value, and in between I have written plus. Python is not able to understand this operation. या तो आप दो इंटीजर्स को ऐड कीजिए या तो दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन कीजिए, कॉन्कैटिनेट कीजिए. एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर वो कंफ्यूज हो गया, वो हमें नहीं, वो एरर दे रहा है हमें.
अब इसे नोटिस कीजिए, मैं लिख रहा हूं पाइथन +3, पाइथन डबल कोट्स में 3 डबल कोट्स में, ये 2 स्ट्रिंग्स हैं और हमें आउटपुट आ रहा है पाइथन 3। Is this understood by all, please? The plus operator for strings, कहाँ नहीं चला और कहाँ चला? Please reply. Okay, next thing, multiplication operator. Python multiplied by 3. Okay, I'm using a multiplication operator with strings. Python multiplied by 3. It will repeat the Python word 3 times. Yes, you can use plus operator and multiplication operator with strings in this manner. Refer to our notes. ये देखिए, ये Python +10 एरर इसलिए आया कि Python स्ट्रिंग है और 10 इंटीजर है, तो उसने एरर दिया। अच्छा, Python को डबल कोट्स में लिखा, 10 को डबल कोट्स में लिखा, तो उसने कॉन्कैटिनेट किया कि वो 2 स्ट्रिंग्स है। Now the multiplication operator, 2 multiplied by Python, or you write it like this, Python multiplied by 2. So it will repeat the Python string 2 times. But I'll show multiplication के 2 और examples दिखा रहा हूँ। Python multiplied by 2.5 करता हूँ तो एरर आएगा। मतलब आप उसे बताइए एग्जैक्टली एक इंटीजर वैल्यू देकर बताइए कितनी बार रिपीट करना है। आपने डेसिमल वैल्यू दिया तो वो नहीं कर पा रहा है मल्टीप्लिकेशन। एंड वन मोर एग्जांपल, पाइथन मल्टीप्लाइड बाय आईडीएल, तो भी एरर आया ना। ये आपने जो किया पाइथन मल्टीप्लाइड बाय आइडियली, ये आप कॉन्कैटिनेट कर सकते थे, पर प्लस डाल सकते थे, मल्टीप्लाई नहीं डाल सकते वहां पीछे। तो ये हमने आपको दिखाया यूज ऑफ प्लस ऑपरेटर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग्स। प्लीज देखिए, इफ यू वांट टू यूज प्लस ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग टाइप, then compulsory both the arguments, both the values should be string type, otherwise we'll get error. So plus आप यूज करोगे तो आगे और पीछे स्ट्रिंग होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करोगे तो कंपल्सरी वन आर्ग्यूमेंट शुड बी इंटीजर एंड द अदर आर्ग्यूमेंट शुड बी स्ट्रिंग। जैसे 2 multiplied by Python, 2 is integer, Python is string, so Python will be repeated 2 times. तो हमने इधर आपको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन और स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर दिखाए। और एक छोटी सी बात हम शेयर कर रहे हैं आपसे डिवीजन के बारे में। ये मैथमेटिकली अक्सर ये बात, मैथमेटिक्स में ये बात कॉमन है, आप कभी भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते किसी नंबर को। यू गेट अ एरर, दैट इज 0 डिवीजन एरर। एनी वैल्यू इफ यू डिवाइड बाय 0, this is a rule in mathematics. So please see, x having some value divided by 0, यहाँ आप रिमाइंडर भी निकाले, 0 से डिवाइड करके रिमाइंडर भी निकाले, जैसे 10% 0, तो भी आपको वो एरर आएगा। You can't divide any value by 0 in mathematics. तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किए ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट सैटरडे हमारा 6 सेशन होगा
in lieu of the one Saturday that we could not take the lecture because, okay. So वो Saturday का our 6th lecture would be on next Saturday, same timing 9:30 to 11. और हम कंटिन्यू करेंगे आगे रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ. ओके. सैटरडे के बाद संडे डिपेंड करता है हम सैटरडे कहाँ तक कर पाते हैं. मैंने डेमो सेशंस में आपको 6 सेशंस का वादा किया था. उसके बाद हम रेगुलर बैच स्टार्ट करेंगे हमारा. दैट मीन्स हम ये कोर्स को आगे ले जाएंगे. मैंने लास्ट कल भी बताया था, आप इसके बारे में सुचिता से बात कर सकते हैं रिगार्डिंग द ऑफिशियल कोर्स ऑन लेट मी टेल यू. ये पाइथन के 2 मॉड्यूल्स है. फर्स्ट 3 months इज core Python and the next 3 months is advanced Python. First 3 months we learn the basics of Python. The next 3 months we learn the object-oriented programming of Python. Do you have any queries before we stop, please? Next Saturday we are meeting at 9:30 to 11. Okay. Anybody has any query, you can unmute yourself and you can even speak to me. मैंने होमवर्क के तौर पे आपको डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और रिमाइंडर ऑपरेटर के प्रॉब्लम्स दिए. मैं प्रोग्राम्स भी आपको कुछ दूंगा. सो ड्यूरिंग द वीक व्हेन आई एम फ्री आई विल फाइंड आउट सम प्रोग्राम्स, suitable programs and send it to you for homework. 2-3 programs I'll send you for homework, please. उन्हें आपको इनपुट से करना है, याद रखना, इनपुट के साथ. मैं जस्ट बिफोर आई स्टॉप एक और खाली बात मैं आपको सिखा देता हूं. एक एग्जांपल दे रहा हूं. से यू हैव अ वेरिएबल सैलरी इक्वल टू 5,000 and you want to calculate bonus as 25% of salary. Bonus we want to calculate as 25% of salary. So how would you write that? 25% of salary. Now आप इधर 25% नहीं लिखेंगे. मैं आपको याद दिलाऊं, परसेंटेज ऑपरेटर रिमाइंडर फाइंड आउट करता है. तो आप परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हमें 25% कैलकुलेट करना है. तो 25% इज रिटन लाइक दिस, 25 divided by 100 and into salary. This is how you're going to calculate 25% of salary. I want to print bonus now. Okay. So 25% of 5,000 is 1250. As you see. ये आपको इसलिए सिखाया कि मैं होमवर्क प्रॉब्लम्स जो है उनमें इस तरह का परसेंटेज कैलकुलेशन होगा. What is this? As I said, 25%. 25% कैसे लिखेंगे? 25 divided by 100. Is this clear? So मेरा क्वेरी है. हाँ पूछिए. आप पूछिए. ये जो ऑपरेटर से परसेंटेज और फ्लोर डिवीजन, ये रियल लाइफ में कहाँ यूज होंगे? मतलब इसका यूसेज कैसा रहेगा? कोई एग्जांपल दे सकते हैं सर रियल लाइफ में? मैं वैसे रियल लाइफ में मैं रिमाइंडर ऑपरेटर की बात करूं तो एक सिंपल सा एग्जांपल मेरे को ध्यान में आ रहा है अभी इमीडिएटली, वो बताता हूं मैं आपको कि आपको जानना है कि कोई ईयर लीप ईयर है कि नहीं है. ओके. लीप ईयर है कि नहीं है. तो ईयर को जैसे फॉर एग्जांपल वो 2019 है, उसको आप 4 से डिवाइड करें. ओके. रिमाइंडर निकालें. अगर वो रिमाइंडर 0 होगा तो वो लीप ईयर है और 0 नहीं होगा तो वो लीप ईयर नहीं है. अब 2020 को डिवाइड कीजिए 4 से, रिमाइंडर 0 आया. यस मींस ओके. और जिस ईयर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो लीप ईयर नहीं है. ये रिमाइंडर ऑपरेटर. हालांकि अभी इसके लिए खाली रिमाइंडर ऑपरेटर नहीं, यू विल आल्सो यूज अ कमांड कॉल्ड एज इफ एल्स कमांड. इफ एल्स कमांड आगे सिलेबस में आता है.
तो बेस्ड ऑन दैट आप जवाब दे सकते हो लीप ईयर और नॉट अ लीप ईयर। ओके सर, ओके। ओके, अच्छा, और अभी आपका डिवीजन ऑपरेटर का और एक एग्जांपल देता हूँ। समझो आपके पास 1023 रुपए है, यस 1023 रुपए, और आपको जानना है कि 10-10 रुपए कितने आएंगे इसमें, 10-10 रुपए के हिसाब से 10 रुपए के कितने नोट्स होंगे इसमें। ओके, तो डबल /10 करें तो आपको मिले 12 होंगे नोट 10 रुपए के, और 123% 10 करेंगे तो आपको पता चलेगा बाकी कितना बच जाता है। मीन्स आपको ओके, करना है कि ये अमाउंट में उसको डिवाइड करना है, कितने 10 रुपए के नोट, कितने 100 रुपए के नोट वगैरह। राइट राइट सर। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर पता लगाना है कि हाँ 100 रुपए के कितने नोट, तो आप डबल /100 करो तो ये आपको मिलेगा एक नोट होगा 100 रुपए का। यस, फिर आप 123 में से मान लो जैसे 100 रुपया कम करो तो बचा 23, तो 23 को आप 10 से डिवाइड करो तो 10 रुपए के कितने नोट हुए, और फिर 23 में से रिमाइंडर निकालो तो आपको पता चलेगा एक रुपए के कितने नोट होंगे। गॉट इट सर, गॉट इट। तो इस तरह से मैंने अपनी पूरा प्रोग्राम नहीं किया इसके ऊपर, मैंने हिंट देने की कोशिश की कि कहाँ आप परसेंटेज ऑपरेटर, डबल फॉरवर्ड स्लैश और परसेंटेज ऑपरेटर कहाँ यूज करेंगे। इज दिस क्लियर? यू गॉट सम क्लियर? यस सर, यस सर, इट्स क्लियर। और कोई क्वेरी है आप में से किसी को? अच्छा, हम यहाँ रुकेंगे क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स के जावा कोर्स के एग्जाम्स है, और मैंने उनके एक्स्ट्रा लेक्चर कॉल किया है अभी 11:30 से 1। तो अब ये अचानक कल रात को ही डिसाइड हुआ, और उनको थोड़ा समय देना है आज ज्यादा क्योंकि उनके एग्जाम्स है नेक्स्ट वीक में। तो मैं जो आपको समय देने वाला था आधा घंटा एक्स्ट्रा मुझे उनको देना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ देयर एग्जाम्स। हम जैसे मैंने कहा नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे, पहले मैं कह रहा था कि नेक्स्ट सैटरडे नहीं मिलेंगे, पर अभी मैं इस सिचुएशन में नेक्स्ट सैटरडे में आपका लेक्चर ले रहा हूँ। ओके, और कोई क्वेरी है आपको प्लीज? आपको कंसेप्ट कैसे समझ में आ रहे हैं बरोबर से? जैसे मैंने पहले भी कहा, ये खाली डेमो नहीं है कि मैं बस आपको खाली फीचर्स दिखाऊं पाइथन का। We are not only demonstrating Python, we are demonstrating our teaching skills also about the subject and our explanation skills also. Okay. Chalo, should we stop over here? I'll be sharing homework programs with you. Today I'm very busy, so that's why I'll be sharing it with you tomorrow or day after tomorrow. Input use करना है उसमें। अच्छा, ये मैं एग्जांपल्स कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फाइल में और ये भी भेजूंगा आपको। इसमें ये याद रखने का भूलना मत, हाउ टू कैलकुलेट 25% ऑफ सैलरी। हाँ, बोनस एज 25% ऑफ सैलरी। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? प्लीज, हाउ डू यू राइट 25%? अच्छा, इफ इट इज 5%, हाउ डू यू राइट 5%? 5 divided by 100 and you multiply it with the amount to get the amount you want. जैसे हमने इधर 25% सैलरी का कैलकुलेट करना है और उसको बोनस में रखना है। मैं ये सारी एग्जांपल्स अभी के आज के जो अभी किए यहाँ मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फाइल में, और ये फाइल भी भेजूंगा मैं आपको। आज के जो फाइल्स है वो मैं भेजूंगा आपको। हमारे फोल्डर में मैं सेव कर रहा हूँ और इस फाइल को नाम दे रहा हूँ मैं एडिशनल एग्जांपल्स, और आज का डेट 14 जून। यहाँ पर एक खाली कमेंट डाल देता हूँ, कैलकुलेट
25% of salary as bonus. ये याद से देख लीजिएगा please. Okay, we'll stop over here for today, please. I'll just take a break for 15 minutes and I have another session. Okay, any queries? We'll stop over here. Friends, Python new batch we are starting Saturday, Sundays. If you have your friends, relatives, you can ask them to join us.